Now we are continuing with the next result on Cartesian product of sets. The next theorem is, if A and B are any two non-empty sets, then prove that A cross B, Cartesian product of B is equal to Cartesian product of BA. They are equal if and only if the sets are equal. So first we take let A is equal to B, and we want to prove that Cartesian product of AB is equal to Cartesian product of BA. To prove Cartesian product of AB is equal to this Cartesian product. Now A cross B, left hand side, because they are equal, we can take B to be A. So this result is A cross A. If we take right hand side, this is B cross A. Again A is equal to B, put A. So both are equal, therefore we have A cross B is equal to B cross A. The first part is proved. Now we take this and we want to prove that A is equal to B. Let A cross B is equal to B cross A. We want to prove that the sets are equal. So first of all, for this we prove that A contained in B and B contained in A, उन दोनों से हो जाएगा कि A बराबर है. तो हमने ये दो पार्ट प्रूव करने हैं. फॉर दिस A का एलिमेंट लेंगे, B में बिलोंग करा देंगे, तो आ जाएगा A इज ए सबसेट ऑफ B. लेट X बिलोंग्स टू A. दिस implies XB belongs to A cross B for every B belongs to B. देखो X तो A का एलिमेंट है, B का एलिमेंट है, तो X भी बिलोंग करेगा A क्रॉस B को. कोई भी एलिमेंट B का ले लो. इसी तो X B बिलोंग कर गया A क्रॉस B को, और A क्रॉस B किसके बराबर गिवन है हमारे पास? B क्रॉस A के बराबर. इसका मतलब X B बिलोंग कर गया B क्रॉस A को. तो यहां से क्या आ गया? X किसको बिलोंग कर गया? B को बिलोंग कर गया. तो A का एलिमेंट B में आ गया. इसका मतलब A इज ए सबसेट ऑफ B. A का एलिमेंट B में आ गया. A इज कंटेन्ड इन B. अब हमने ये पार्ट प्रूव करना है. लेट X बिलोंग्स टू B. उसी तरह जैसे ये पार्ट किया है, X A belongs to B cross A for every A belongs to A. Again X A belongs to B cross A, but this is equal to A. This is the Cartesian product. तो यहां से क्या आ गया? X A belongs to the Cartesian product of A B, और यहां से क्या आ गया? X A को बिलोंग कर गया. इसका मतलब B का एलिमेंट A में आ गया. तो यहां से आ गया B इज कंटेन्ड इन A. तो A B में कंटेन्ड हो गया, B A में. यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया A इज ए सबसेट ऑफ B. नाउ वी प्रूव द नेक्स्ट थ्योरम. If A is a subset of B, show that A cross A is a subset of A cross B intersection
B क्रॉस A। तो हमने ये प्रूव करना है। लेट AB बिलोंग्स टू A क्रॉस A। अब इसका एलिमेंट लेंगे और हम प्रूव कर देंगे कि इसको बिलोंग कर रहा है। तो लेट AB बिलोंग्स टू दिस एलिमेंट। So this implies A belongs to A, B belongs to A. A belongs to A and B belongs to A। इसका मतलब दोनों ही एलिमेंट A को बिलोंग कर रहे हैं। So A belongs to A, B belongs to A and इसको ऐसे लिख सकते हैं A belongs to A, B belongs to A। इसको ऐसे लिख सकते हैं। Now A belongs to A, we can write B belongs to B because A is a subset of B given। जो A का एलिमेंट है वो B में आ जाएगा। ये A का एलिमेंट है, B में आ गया। ठीक है, इसी तरह इसको हमने 2 बार लिख लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह ये इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। A बिलोंग्स टू, इसको B कर देते हैं, A का एलिमेंट B में, तो A B में लिख सकते हैं, B को A में लिख सकते हैं। एज इट इज रहने दो इसको। ठीक है, तो आ गया A B बिलोंग्स टू A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A B एंड इसी तरह A B बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B। तो ये A B एलिमेंट किसको बिलोंग कर गया? दोनों में आ गया, तो मतलब है उनकी इंटरसेक्शन में आ गया। ठीक है, सो A B हमने एलिमेंट लिया इसका और बिलोंग कर दिया, इसमें आ गया। इसका मतलब दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस वी वांट टू प्रूव। नेक्स्ट थ्योरम, लेट्स डू द नेक्स्ट थ्योरम। If A is a subset of B, prove that a Cartesian product of AC is contained in Cartesian product of BC for any set C. For any set C, तो हमने इसका एलिमेंट लेना है। लेट A B belongs to Cartesian product of AC। This implies A belongs to A, B belongs to C, A belongs to A and B belongs to C। Now because A is a subset of B, जो A का एलिमेंट है वो B में आ गया। इसका मतलब A belongs to B and B belongs to C। This implies this element AB belongs to Cartesian product of BC। So इसका एलिमेंट लिया हमने ये और शो कर दिया कि इसको बिलोंग कर गया। इसका मतलब दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस इज आवर रिजल्ट। इसी तरह हम ये थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। इफ A is a subset of B and C is a subset of D, then prove that A cross C is a subset of BD Cartesian product। This we can prove। Next theorem, we have AB. Let A and B
two non-empty sets having n elements in common, then prove that Cartesian product of AB and B cross A, Cartesian product of BA have n square elements in common. इनके कॉमन जो एलिमेंट होंगे n स्क्वायर होंगे. तो we know that A cross B ये रिजल्ट है हमारे पास एक. इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं. इंटरसेक्शन दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, जिसको आप प्रूव भी कर सकते हो. तो इस रिजल्ट में हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे हम C बाय B, C को B से एंड D बाय A. जो यहां पर C है वहां पे B लिखेंगे. तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B, C की जगह पे क्या लिखना है B, और D की जगह पे क्या लिखना है A. दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B लिखेंगे C की जगह पे, क्रॉस B, और D की जगह पे A लिखेंगे. तो ये आ गया हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B क्रॉस B, A इंटरसेक्शन B क्रॉस, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है, ये इंटरसेक्शन है. तो ये आ रहा है. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं. सो वी हैव A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A इज इक्वल टू, ये दोनों ही सेम है, चाहे A इंटरसेक्शन B लिखो चाहे B इंटरसेक्शन A लिखो, ये सेम है. तो इनको ऐसे सेम ही लिख लेते हैं कि दोनों A क्रॉस B हैं. नाउ गिवन दैट A and B have n elements in common, so A इंटरसेक्शन B के जो नंबरिंग है इसके n एलिमेंट्स है, हैज n एलिमेंट्स. A इंटरसेक्शन B में n एलिमेंट्स है. तो हमें पता है बाय द रिजल्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, अगर A में m एलिमेंट्स हैं और B में n एलिमेंट्स हैं, तो हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे A क्रॉस B में, mn आएंगे. तो यही रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई होगा. ये मान लो A है हमारा, ये हमारा B है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A. दोनों में सेम एलिमेंट्स है, ठीक है. ये भी A है, ये भी A है. तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने आएंगे, A इंटरसेक्शन B क्रॉस A इंटरसेक्शन B हैज, क्योंकि इसमें n एलिमेंट्स हैं, इसमें भी n एलिमेंट्स हैं, इसमें भी n एलिमेंट्स हैं, तो मल्टीप्लाई करके हैज n स्क्वायर एलिमेंट्स. तो इसमें n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं और दोनों सेट बराबर है. इसका मतलब इन दोनों में कितने एलिमेंट आ गए,
n स्क्वायर एलिमेंट्स आ गए, क्योंकि इसमें n स्क्वायर एलिमेंट्स आ गए तो ये दोनों सेट बराबर है। इसका मतलब a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a हैज n स्क्वायर एलिमेंट्स। तो इन दोनों में कितने एलिमेंट्स कॉमन आ गए? n स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था।